السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ پیش خدمت ہے اینک والا جن۔ بے ہوش سکوٹا کو بازوؤں پر اٹھائے انسانی ہڈیوں کا پنجر مندر کی دیوار کے پاس آ کر رک گیا۔ یہاں اندھیرے میں دیوار کے چوکور پتھر پر سانپ کی شکل بنی ہوئی تھی۔ انسانی پنجر کی کھوپڑی ہلنے لگی۔ کھوپڑی کے منہ کے چوڑے سوراخ میں سے لال رنگ کی شعاع نکل کر پتھر پر بنے ہوئے سانپ کے منہ پر پڑی۔ ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور پتھر اپنی جگہ سے کھسک کر ایک طرف ہو گیا۔ آگے ایک زینہ اندھیرے میں نیچے جاتا تھا۔ انسانی پنجر زینہ اترنے لگا۔ پتھر کی سل گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ واپس دیوار کے ساتھ مل گئی۔ نیچے ایک لمبا تہہ خانہ تھا جس کے اندر بنی ہوئی ایک کوٹھڑی کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے سبز رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ انسانی پنجر کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ کوٹھڑی کے اندر ایک چبوترا تھا۔ چبوترے پر ایک چوڑا چکلا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے سارے بدن پر نیلی پٹیاں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا جسم زندہ انسانوں کی طرح تھا مگر گردن کے اوپر زندہ سر کی بجائے ایک کھوپڑی نظر آ رہی تھی۔ کھوپڑی کی آنکھوں، ناک اور منہ کے سوراخوں میں سے نیلے رنگ کا دھواں نکل رہا تھا۔ یہ کھوپڑی والا آتش پرست جالوت تھا جس کے جادو کے آگے بڑے بڑے جادوگر تھر تھر کانپتے تھے۔ انسانی پنجر نے بے ہوش سکوٹا کو کھوپڑی والے جالوت کے آگے ڈال دیا اور کہا، کھوپڑی والے جالوت آقا، میں نے آپ کا حکم پورا کر دیا ہے۔ یہ کوکاف کا جن سکوٹا ہے۔ یہ میرے نیچے سے گزرا، میں نے اسے جکڑ لیا اور بے ہوش کر کے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ کھوپڑی والے جالوت کی کھوپڑی کے سوراخ میں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ اس نے بھاری اور بیٹھی ہوئی آواز میں کہا، شاباش، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ انسانی پنجر واپس مڑا اور اپنی ہڈیوں کو کھڑکھڑاتا جدھر سے آیا تھا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کھوپڑی والے جالوت نے غور سے بے ہوش سکوٹا کو دیکھا۔ پھر ایک بھیانک کہکہے کی آواز گونج اٹھی۔ کھوپڑی والے جالوت نے اسے اپنے بازوؤں پر ڈالا اور چبوترے کے پتھر پر زور سے پاؤں مارا۔ چبوترے میں ایک شگاف نمودار ہو گیا۔ جالوت زکوٹا کو لے کر شگاف میں نیچے اتر گیا۔ نیچے ایک سرنگ تھی جس میں ایک ندی بہہ رہی تھی۔ ندی میں ایک چھوٹی سی کشتی کنارے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ جالوت زکوٹا کو لے کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس نے کشتی کھول دی اور کشتی ندی کی تیز لہروں پر سرنگ کے اندر آگے کو بہنے لگی۔ ندی سرنگ کے اندر ہی اندر دور تک چلی گئی تھی۔ ایک جگہ سرنگ ختم ہو گئی۔ یہاں ندی ایک دریا میں گرتی تھی۔ کشتی دریا میں آ گئی۔ چاروں طرف تاریکی تھی۔ صرف کھوپڑی والا جالوت جانتا تھا کہ کشتی دریا میں آ چکی ہے۔ کشتی دریا میں بہے جا رہی تھی۔ آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے۔ دریا میں کافی آگے جا کر کھوپڑی والا جالوت کشتی کو کنارے پر لے آیا۔ کنارے پر آتے ہی جالوت کی کھوپڑی نے ایک بھیانک چیخ ماری۔ چیخ کی آواز پر اچانک آسمان پر سے ایک تخت نیچے اتر آیا جس کو دو بڑے بڑے جانوروں نے اٹھا رکھا تھا۔ کھوپڑی والے جالوت نے چیخ کر کہا، مجھے پجاری راکھیش کے مندر میں لے چلو۔ جالوت تخت پر بیٹھ گیا۔ جانوروں نے تخت کو اٹھایا اور ہوا میں اڑاتے رات کی تاریکی میں گم ہو گئے۔ تخت کالے کالے بادلوں میں تیزی کے ساتھ اڑتا جا رہا تھا۔ ساری رات اور سارا دن تخت بادلوں میں اڑتا رہا۔ دوسرے دن رات کے وقت تخت نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ کھوپڑی والے جالوت نے نیچے دیکھا۔ اسے اندھیرے میں پجاری راکھیش کے مندر کا تکون منارہ نظر آیا۔ جانوروں نے تخت مندر کی چھت پر رکھ دیا۔ جالوت نے بے ہوش سکوٹا کو کاندھے پر ڈالا اور مندر کی سیڑھیاں اتر کر تالاب کے کنارے ایک راہداری میں سے گزرتا ہوا ایک کمرے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے اپنی کھوپڑی سے شعاع نکال کر بند دروازے پر ڈالی۔ اندر سے پجاری راکھیش نے آواز دے کر پوچھا، کون ہو تم؟ آدھی رات کے وقت ہمیں کیوں تنگ کرنے آئے ہو؟ کھوپڑی والے جالوت نے کہا، پجاری راکھیش، میں تمہاری امانت لے آیا ہوں۔ میں نے تمہاری شرط پوری کر دی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر مشل جل رہی تھی۔ اس کی روشنی میں راکھیش پجاری نمودار ہوا۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا۔ ماتھے پر زرد رنگ کے تلک کا نشان تھا۔ ہاتھ میں ترشول تھا۔ اس نے بے ہوش سکوٹا کو دیکھا اور بولا، کیا یہ کوکاف کا جن ہے؟ ہاں راکھیش، تم بھی اپنی تسلی کر لو۔ راکھیش نے زکوٹا کو اچھی طرح سے دیکھا بھالا اور کہنے لگا، ہاں یہ کوکاف کا جن زکوٹا ہی ہے۔ تم نے اپنی شرط پوری کر دی ہے۔ جالوت بولا، اب تم اپنی شرط پوری کرو اور میرا سر مجھے واپس کر دو۔ راکھیش نے بے ہوش سکوٹا کو تخت پر لٹا دیا۔ پھر جالوت سے کہا، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ میں تمہاری چیز تمہیں واپس کر دوں۔ پجاری نے ایک الماری کھولی۔ الماری میں جالوت کا اصلی انسانی کٹا ہوا سر ایک تھالی میں رکھا تھا۔ پجاری راکھیش نے سر اٹھایا اور جالوت کی کھوپڑی اتار کر اس کا اصلی زندہ سر اس کے جسم پر دوبارہ لگا دیا۔ جالوت نے خوشی کا نعرہ بلند کیا اور جھک کر آداب بجا لا کر کمرے سے نکل گیا۔ مندر کے پجاری راکھیش نے بے ہوش سکوٹا کو مندر کی غار میں ایک مرتبان میں بند کر کے مرتبان کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا۔ یہ مندر آج سے ہزاروں سال پہلے ملک ہندوستان کے شمال میں کوہمالیہ کی پہاڑیوں میں واقع تھا اور پجاری راکھیش نے زکوٹا جن کو اپنے قبضے میں لے کر بہت بڑی طاقت حاصل کر لی تھی اور اب وہ کوہمالیہ کے تمام مندروں کا سب سے بڑا پجاری بن گیا تھا۔ یہی اس کا منشا بھی تھا
और इसीलिए इसने अपने तिलिस्म के जरिए खोपड़ी वाले जालूद को हुक्म दे रखा था कि अगर ज़कूटा जिन कहीं नजर आए तो इसे फौरन काबू करके मेरे पास ले आओ। पुजारी राकेश ने जालूद की गर्दन उतारकर इसकी जगह एक खोपड़ी लगा दी थी और कहा था, जब तक तुम ज़कूटा को नहीं ले आते तुम्हारा असली सर मेरे पास ही रहेगा। अब हम उम्र अय्यार और नस्तूर की तरफ आते हैं। ये दोनों दोस्त कामई नागिन के साथ शहर बाबल की एक सराय में बैठे हुए थे। रात का वक्त था। ज़कूटा किसी जादूगर का मालूम करने सराय से बाहर गया हुआ था ताकि वो कोई ऐसा तिलिस्म हासिल कर सके जो इन्हें हजारों साल पुराने तारीख के जमाने से अपने जदीद शहर लाहौर वापस पहुंचा दे। जब ज़कूटा को गए काफी देर हो गई तो उम्र अय्यार, कामई और नस्तूर को तशवीश हुई। उम्र अय्यार कहने लगा, खुदा खैर करे, ज़कूटा किसी मुश्किल में न फंस गया हो। नस्तूर ने हंस कर कहा, वो बड़ा होशियार है, कोई मुसीबत आ भी गई तो वो ज़ेबिनोफ का नारा लगाएगा और गायब हो जाएगा। कामई नागिन ने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि ज़कूटा को नारा मारने का मौका ही न मिले। नस्तूर बोला, अरे भाई तुम लोग इतने फिक्रमंद क्यों होते हो, ज़कूटा वापस आ ही रहा होगा। उम्र अय्यार फिक्रमंद होकर कहने लगा, नस्तूर भाई, ये हजारों साल पुराना बाबुल का शहर है। यहाँ कदम कदम पर तिलिस्म और जादू का खेल होता है। हर मंदिर में कोई ना कोई जादूगर मौजूद होता है। मुझे डर है कि ज़कूटा पर किसी जादूगर ने जादू न कर दिया हो। नस्तूर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर मालूम कर लेते हैं कि ज़कूटा कहाँ है। तीनों दोस्त सराय से निकल पड़े। शहर में रात का वक्त था। अगरचे इस जमाने में भी सड़कों और गलियों में रोशनी के लिए मशालें रोशन हो जाया करती थी, मगर हमारे जमाने की तरह बिजली की रोशनी नहीं होती थी और शहर का अक्सर इलाका तारीकी में डूबा रहता था। मगर इन लोगों को अंधेरे में भी बहुत कुछ नजर आ जाता था। नस्तूर, उम्रू और कामई के पास अपनी अपनी फुल ताकत मौजूद थी। ज़कूटा को तलाश करते करते वो इस मंदिर के पास आ गए जहाँ से ज़कूटा को इंसानी पिंजर ने बेहोश करके अगवा किया था। वो मंदिर की दीवार के साथ साथ चलते गए। कामई नागिन कहने लगी, मुझे जहाँ से ज़कूटा की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। उन्होंने ज़कूटा की तलाश शुरू कर दी। नस्तूर ने इसको 2-3 आवाजें भी दी मगर कोई जवाब ना मिला। उम्र अय्यार दीवार को गौर से देख रहा था। एक जगह पहुंचकर कामई नागिन रुक गई और कहने लगी, नस्तूर, यहाँ पर ज़कूटा की खुशबू गायब हो जाती है। तीनों दोस्त वहाँ आकर रुक गए। कामई नागिन चूँकि असल में सांप थी इसलिए इसे अपने दोस्तों की खुशबू आ जाती थी। आदमी जहाँ से चला जाता है वहाँ से इसकी खुशबू कुछ देर के लिए जरूर मौजूद रहती है। ये हम महसूस नहीं कर सकते मगर सांप महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि कामई नागिन ने इस जगह पर ज़कूटा की हल्की खुशबू महसूस कर ली थी जहाँ से वो अगवा हुआ था। नस्तूर ने कहा, दोस्तों, अगर ज़कूटा की खुशबू यहाँ पर खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है वो जरूर यहाँ कहीं मौजूद है। उन्होंने दीवार के साथ साथ ज़कूटा को तलाश करना शुरू कर दिया। अचानक नस्तूर की नजर एक पत्थर की सिल पर पड़ी जो मंदिर की दीवार में लगी हुई थी और जिस पर सांप की शक्ल बनी हुई थी। इसने कामई और उम्र अय्यार से कहा, अरे दोस्तों, इधर देखो, ये पत्थर पर सांप की तस्वीर बनी है, इसमें जरूर कोई राज है। उम्र अय्यार और कामई नागिन झुककर सांप की तस्वीर को देखने लगे जो पत्थर पर उभरी हुई थी। कामई नागिन ने कहा, ये महानाग के कबीले का सांप है। इस कबीले के नाग हिंदुओं के शुमाली इलाके के मंदिरों में पूजे जाते हैं। उम्र अय्यार ने पत्थर की सिल को जोर से दबाया मगर पत्थर अपनी जगह से ना हिला। नस्तूर बोला, पीछे हट जाओ, मैं इस पत्थर को उखाड़ता हूँ, शायद इसके पीछे ज़कूटा कैद हो। नस्तूर ने अपने लॉकेट को चूमा और जोर से पत्थर की सिल पर हाथ मारा। पत्थर अपनी जगह से पीछे हट गया। अंदर एक जीना निकल आया। उम्रू बोला, ये जीना जरूर किसी खुफिया तहखाने में जाता है। कामई नागिन ने जोर से सांस लेकर कहा, मुझे नीचे से ज़कूटा की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। तो फिर नीचे चलो दोस्तों, जल्दी करो, ज़कूटा जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। ये कहकर नस्तूर जीने की सीढ़ियां उतरने लगा। कामई नागिन और उम्रू अय्यार इसके पीछे पीछे थे। नीचे वो सुरंग में पहुंच गए। ये वही सुरंग थी जिसकी कोठड़ी में खोपड़ी वाला जालूद ज़कूटा को राकेश पुजारी के पास लेकर गया था। कोठड़ी में फैली हुई ज़कूटा की हल्की हल्की खुशबू को कामई नागिन ने फौरन महसूस कर लिया और कहने लगी, ज़कूटा यहाँ लाया गया था, मगर वो यहाँ क्यों आया? इसे कौन लाया था? फिर वो यहाँ से कहाँ चला गया? ये सवाल उम्र अय्यार ने पूछे थे, जिसके जवाब में नस्तूर ने कहा, यही तो हमें मालूम करना है। सबने मिलकर कोठड़ी की सारी तलाशी ली, जगह जगह देखा, मगर इन्हें वहाँ कोई छोटा सा सुराख भी ना मिला। नस्तूर ने कहा, हमें ज़कूटा को तलाश करने के लिए किसी काले इल्म वाले जादूगर से मशवरा लेना होगा, क्योंकि ये सारा काले इल्म का अमल है जो शैतानी इल्म होता है। तीनों सुरंग से निकलकर वापस सराय में आ गए। नस्तूर कहने लगा, हम वापस लाहौर अपने जमाने में जाने की फिक्र में थे और यहाँ ज़कूटा ही गायब हो गया है। हमें सबसे पहले इसे ढूंढना होगा। उम्र अय्यार ने कामई नागिन से कहा, तुम शीशनाग से क्यों नहीं पूछती? शायद इसको मालूम हो कि ज़कूटा कहाँ है। कामई नागिन ने इसी वक्त एक खास मंत्र पढ़कर शीशनाग को हाजिरी दी और वो शीशनाग के दरबार में पहुंच गई। इसने शीशनाग से ज़कूटा के बारे में पूछा तो इसने कहा, ज़कूटा इस वक्त हिमालय की पहाड़ियों में महानाग के मंदिरों के आसपास किसी जगह है, मगर वहाँ बाहर का कोई सांप या नागिन नहीं जा सकती। वहाँ महानाग की हुकूमत है। मैं तुम्हें भी मना करूँगा कि वहाँ मत जाना। अगर तुम गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी का जिम्मेदार नहीं होऊंगा। शीशनाग का दरबार गायब हो गया।
कामई नागिन ने आंखें खोल दी और नस्तूर उम्र अय्यार को सारी बात बयान कर दी। उम्र अय्यार बोला, जब हमें पता चल चुका है कि ज़कूटा को हिमालय के महानाग मंदिरों में किसी जगह पर मौजूद है, तो फिर हमें इसकी मदद को जरूर जाना चाहिए। कामई नागिन को हम इस इलाके से बाहर ही रखेंगे और खुद मंदिरों में जाकर ज़कूटा का सुराग लगाएंगे। कामई नागिन और नस्तूर को ये तजवीज़ पसंद आई। नस्तूर ने कहा, हमें मुल्क हिंदुस्तान के शुमाली इलाके में जाना होगा। ये सफर बड़ा खतरनाक है और इस तरफ शायद ही कोई काफिला जाता हो। कामई नागिन कहने लगी, हम सराय से मालूमात हासिल करते हैं कि हिंदुस्तान को कोई काफिला जाता है या नहीं। सुबह होते ही नस्तूर ने सराय के मालिक से पूछा, भाई साहब, यहाँ से मुल्क हिंदुस्तान की तरफ भी काफिले जाते हैं क्या? सराय का मालिक बोला, क्यों नहीं, हफ्ते में एक बार एक काफिला हिंदुस्तान को जाता है। नस्तूर ने कहा, मगर हमें हिंदुस्तान के शुमाल में हिमालय के इलाके में जाना है। सराय का मालिक कहने लगा, इस तरफ कोई काफिला नहीं जाता क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ बर्फ गिरती है। काफिले सिर्फ पाटलिपुत्र शहर तक ही जाते हैं, आगे आप लोगों को खुद बंदोबस्त करना होगा। नस्तूर कोठड़ी में वापस आ गया और कहने लगा, हमारा काफिले के साथ जाना इसलिए जरूरी है कि हमें सिमत का अंदाजा नहीं है। हम अगर हवा में उड़कर भी गए तो रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि हिंदुस्तान के शहर पाटलिपुत्र तक काफिले के साथ सफर करते हैं। इसके बाद वहाँ से शुमाल की जानिब को हिमालय के इलाके में उड़कर पहुँच जाएंगे। सबने इस फैसले को पसंद किया। 3 दिन बाद एक काफिला सराय के मैदान से तैयार होकर मुल्क हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया। नस्तूर, कामई नागिन और उम्र अय्यार इस काफिले में आम मुसाफिरों की तरह सफर कर रहे थे। राकेश पुजारी को ये मालूम था कि ज़कूटा कोकाफ का बड़ा ताकतवर जिन है। वो इसकी सारी ताकत छीनकर अपने तिलिस्मी ताकत में शामिल करना चाहता था, ताकि इसके पास इतनी ज्यादा ताकत आ जाए कि वो हिंदुस्तान के सारे महानाग मंदिरों का राजा पुजारी बन जाए और सारे मंदिरों के पुजारी इसके कब्जे में आ जाए। इस काम के लिए जरूरी था कि ज़कूटा को 2 दिन और 2 रातें मर्तबान में बंद रखा जाए और इसके बाद इसकी ताकत हासिल करने के लिए चिल्ला किया जाए। चुनाचे 2 दिन और 2 रातों के बाद पुजारी राकेश ने बेहोश ज़कूटा को मर्तबान में से निकाल लिया। वो इसे महानाग मंदिर के पीछे एक झील के किनारे ले आया। यहाँ बड़े घने दरख्त थे और सारा इलाका सुनसान और वीरान था। किनारे पर दरख्तों के दरमियान एक पत्थर की बारादरी बनी हुई थी। राकेश पुजारी ने बेहोश ज़कूटा को बारादरी के फर्श पर बिल्कुल सीधा लिटा दिया, फिर खुद इसके सामने बैठ गया और खास तिलिस्मी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो सारा दिन और सारी रात वहाँ बैठा मंत्र पढ़ता रहा। यही इसका चिल्ला था। तीसरे दिन आधी रात के बाद राकेश पुजारी के मंत्र पूरे हो गए। वो उठकर झील पर गया, प्याले में पानी भरकर लाया, पानी में 10 बार फूंक मारी और सारा पानी ज़कूटा के जिस्म पर छिड़क दिया। ज़कूटा जो पहले सांस ले रहा था, अब इसका सांस रुक गया। राकेश पुजारी ने इसकी नब्ज़ देखी। नब्ज़ बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। राकेश पुजारी बड़ा खुश हुआ। इसका चिल्ला कामयाब हो गया था। इसने ज़कूटा के जिस्म को दोबारा हाथ लगाया तो खुशी से उछल पड़ा। ज़कूटा पत्थर बन चुका था। राकेश ने एक बहुत बड़े पत्थर को बड़ी आसानी से उठाया और हवा में उछाल दिया। इसके अंदर ज़कूटा की ताकत आ चुकी थी। राकेश पुजारी ने ज़कूटा के पथरीले बुत को एक हाथ से उठाया और झील में डाल दिया। ज़कूटा पत्थर बनकर बहुत भारी हो गया था। वो फौरन झील के पानी में डूब गया और नीचे झील की तह में जा लगा। राकेश ने अपने मंदिर में आते ही महानाग की बड़ी पूजा का ऐलान कर दिया। सारे मंदिरों के पुजारी वहाँ जमा हो गए। सारा दिन महानाग की पूजा होती रही। शाम को राकेश पुजारी ने सारे मंदिरों के पुजारियों को जमा किया और बुलंद आवाज में कहा, आज से मैं सारे मंदिरों का महापुजारी हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम सबसे ज्यादा ताकत है। तुम में से कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर किसी को एतराज है तो सामने आकर देख ले। इसके बाद महापुजारी राकेश ने एक बहुत बड़ी चट्टान को हाथ मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर इसने ज़कूटा की तरह ज़ेबिनोव का नारा लगाया और हवा में उड़ने लगा। मंदिर का चक्कर लगाकर वो नीचे आ गया और पुकारा, कौन है जो मेरी ताकत का मुकाबला करे? सब पुजारी डर गए। उन्होंने सर झुका दिया और कहा, बेशक तुम महापुजारी हो और आज से तुम हमारे राजा हो। हम तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेंगे। राकेश पुजारी अब महापुजारी बन गया था। इसने सारे मंदिरों के जवाहरात और सोना चांदी मंगवाकर अपनी कोठरी में रखवा लिए और ऐलान करा दिया, आज के बाद पूजा करने वाले पहले मेरे मंदिर में आएंगे और सोना चांदी का चढ़ावा चढ़ाएंगे। ज़कूटा झील में पत्थर बनकर डूबा हुआ था। राकेश पुजारी महापुजारी बनकर सारे मंदिरों का राजा बन गया था और इधर उम्र अय्यार, नस्तूर और कामई नागिन ज़कूटा की तलाश में एक काफिले के साथ हिंदुस्तान की तरफ सफर करते चले आ रहे थे। खलाई चीफ ने बिलबतौड़ी चुड़ैल और हामून जादूगर के साथ मिलकर शहर के सबसे बड़े बैंक पर डाका डालने और इसका सारा सोना लूटने का प्रोग्राम तय कर लिया था। बिलबतौड़ी चुड़ैल को उन्होंने खुफिया गार में ही रहने को कहा था और खुद अशकाली को लेकर बैंक की तरफ चल पड़ा। वो आम इंसानों के लिबास में थे। रास्ते में खलाई चीफ ने अशकाली से कहा, अशकाली, हमें सोने के अलावा यहाँ के करेंसी नोटों की भी जरूरत होगी, इसलिए कुछ करेंसी नोट भी लूट कर लाने होंगे।
اشکالی نے خلائی چیف کے اس خیال کی تائید کی اور کہا ہاں چیف، ہمیں روپوں کی سخت ضرورت پڑے گی۔ شہر کے سب سے بڑے بینک کا پتہ ہامون جادوگر نے انہیں دے دیا تھا۔ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر بینک کے سامنے آ گئے اور ٹیکسی والے کو چھوڑ دیا۔ دن کا وقت تھا، بینک میں کافی رش تھا۔ خلائی چیف اور اشکالی کے پاس خلائی پستول موجود تھے۔ بینک میں داخل ہو کر انہوں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ کھڑکیوں پر سلاخیں لگی ہوئی تھی، ان کے پیچھے کلرک وغیرہ کام کر رہے تھے۔ لوگ چیک دے کر پیسے لے رہے تھے اور رقمیں جمع بھی کروا رہے تھے۔ خلائی چیف نے دیکھا ایک طرف اندر کو جانے کا راستہ بنا ہوا ہے، مگر وہاں ایک گارڈ بندوق لیے کھڑا ہے۔ خلائی چیف نے اشکالی کو اشارہ کیا۔ دونوں چوکیدار کے پاس آ کر اندر جانے لگے تو چوکیدار نے انہیں روک دیا۔ خلائی چیف نے ہنس کر کہا اگر تم ہمیں اندر نہیں جانے دو گے تو ہم غائب ہو کر چلے جائیں گے، کیا خیال ہے؟ چوکیدار سمجھا یہ کوئی پاگل ہے۔ اس نے خلائی چیف کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ خلائی چیف کو غصہ آ گیا۔ اس نے اشکالی سے کہا اشکالی، اب ہم غائب نہیں ہوں گے، ان لوگوں کے سامنے رہ کر بینک لوٹیں گے۔ چوکیدار نے بندوق تان لی اور شور مچا دیا۔ ڈاکو آ گئے ہیں، خبردار، گولی مار دوں گا۔ اسی وقت خزانچی نے خطرے کا الارم بجا دیا۔ خلائی چیف نے چوکیدار کو پرے دھکا دیا تو چوکیدار نے فائر کھول دیا۔ 2 گولیاں خلائی چیف کے سینے پر لگی، مگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ گولیاں اس کے جسم سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ چوکیدار نے اشکالی پر فائر کر دیا۔ اشکالی کو بھی کچھ نہ ہوا۔ خلائی چیف نے بلند آواز میں کہا میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تم غریب آدمی ہو، آگے سے ہٹ جاؤ۔ چوکیدار ڈر کر پرے ہٹ گیا۔ بینک میں بھگدڑ مچ گئی۔ فائرنگ کی آواز سن کر لوگوں نے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ گارڈ نے بڑے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کمرے میں کرنسی نوٹوں کے صندوق اور وہ الماری تھی جس میں سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ خلائی چیف اور اشکالی نے اپنی اپنی خلائی گن نکال لی تھی۔ وہ سیدھا بینک کے بڑے افسر کے پاس آ گئے جو وہیں ایک بڑی میز کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ خوف زدہ تھا اور ٹیلی فون پر پولیس کو بلانے کے لیے بات کر رہا تھا۔ خلائی چیف نے ٹیلی فون اٹھا کر دور پھینک دیا اور خلائی پستول تان کر بولا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ سونا اور کرنسی نوٹوں کے صندوق کہاں ہیں۔ بینک افسر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا مجھے نہیں معلوم۔ خلائی چیف نے ایک کرسی پر خلائی پستول کا فائر کر دیا۔ پستول میں سے لیزر کی شعاع نکل کر کرسی پر گری اور کرسی ایک دھماکے سے آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو گئی۔ خلائی چیف نے کہا میں تمہیں 2 سیکنڈ دیتا ہوں۔ 1 2 بینک آفیسر نے جلدی سے کہا وہ سامنے کمرہ ہے۔ خلائی چیف اور اشکالی بڑے آرام سے چلتے ہوئے سامنے والے کمرے کے پاس آ گئے۔ کمرہ بند تھا، اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ خلائی چیف نے خلائی پستول کا فائر کیا، دروازہ جل کر راکھ ہو گیا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ وہ صندوق کھول کھول کر دیکھنے لگے۔ صندوق 1000 500 500 اور 100 کے نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اشکالی نے ایک الماری کھولی، اس میں سونے کی اینٹیں چمک رہی تھی۔ اس نے خوش ہو کر کہا چیف یہاں سونا موجود ہے۔ خلائی چیف بھی خوش ہو گیا اور دونوں سونے کی اینٹیں نکال کر ایک خالی صندوق میں ڈالنے لگے۔ جب صندوق بھر گیا تو انہوں نے اسے کرنسی نوٹوں والے صندوق کے اوپر رکھا۔ اتنے میں وہاں پولیس آ گئی اور پولیس کے سپاہیوں نے ایک دم سے فائر کھول دیا۔ گولیاں اشکالی اور خلائی چیف پر تڑ تڑ برسنے لگی، مگر ان دونوں خلائی انسانوں پر ایک بھی گولی کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ خلائی چیف نے اپنی خلائی پستول کا رخ اس طرف کر دیا جس طرف سے پولیس فائر کر رہی تھی۔ پستول میں سے شعاع نکلی اور دھماکے کے ساتھ پولیس کے چاروں سپاہی جل کر راکھ ہو گئے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اشکالی اور خلائی چیف نے دونوں صندوق سامنے رکھ لیے اور جیب سے ایک چھوٹی سی ڈسک نکالی جس پر نمبر لکھے ہوئے تھے۔ یہ خلائی نمبر تھے۔ وہ نمبروں پر انگلیاں چلانے لگے۔ جب نمبروں کا ایک خاص لفظ بن گیا تو وہ دونوں صندوق غائب ہو گئے۔ خلائی چیف نے مسکرا کر کہا اشکالی، سونے اور کرنسی نوٹوں کے صندوق فضا میں ایٹمی ذرات کی شکل میں گردش کرنے لگے ہیں۔ اب ہم انہیں اپنے غار میں جا کر پھر سے واپس ایک جگہ جمع کریں گے۔ چلو ہمارا پہلا مشن کامیاب ہو گیا ہے۔ دونوں بینک سے باہر نکل آئے۔ سارا بینک خالی ہو گیا تھا۔ باہر لوگ ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ اچانک پولیس کی ایک گاڑی میں سے ان پر فائرنگ ہونے لگی۔ گولیاں اشکالی اور خلائی چیف کے جسموں سے ٹکرا کر گرتی رہی۔ خلائی چیف نے کہا میرا خیال ہے اب ہمیں غائب ہو کر واپس جانا ہوگا۔ اوکے چیف، اشکالی نے جواب دیا۔ دونوں نے اپنے اپنے ہاتھ سینے پر رکھے اور پولیس اور دوسرے لوگوں کے سامنے سے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ وہاں شور مچ گیا کہ جن بھوتوں نے بینک لوٹ لیا ہے۔ کوئی کہتا کسی سیارے کی مخلوق نے حملہ کر دیا ہے، کوئی کہتا کسی ملک کے جادوگر آ گئے ہیں۔ غار میں بلبتوڑی اور ہامون جادوگر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ہامون جادوگر کہہ رہا تھا بلبتوڑی ناسا چوڑی، ذرا سوچ آخر یہ خلائی لوگ ہمیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے۔ بلبتوڑی نے چیخ مار کر کہا ہامون، مجھے تو لگتا ہے یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اپنے گام نکال کر ہمیں دھتکار کر خود ساری دنیا پر حکومت کرنے لگیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہم سامری کے تخت پر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ ہامون جادوگر نے غصے میں آ کر کہا بلبتوڑی، اگر انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تو سامری جادوگر کی قسم میں انہیں ایسی سزا دوں گا کہ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ اگر یہ خلائی مخلوق ہے تو میں بھی ہامون جادوگر ہوں، کوئی پتلون جادوگر نہیں ہوں۔ اتنے میں اچانک خلائی چیف اور اشکالی ظاہر ہو گئے۔ چیف نے جادوگر ہامون کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا
मिशन पूरा हो गया है, मुबारक हो। जादूगर ने पूछा, बैंक लूट लिया? अश्काली ने कहा, हाँ लूट लिया। जादूगर हामून बोला, दौलत कहाँ है? तुम दोनों तो खाली हाथ वापस आए हो। खलाई चीफ ने कहा, अंदर कोठरी में आओ। वो सब कार की पिछली कोठरी में आ गए। हामून जादूगर बोला, कोठरी तो खाली है। खलाई चीफ कहने लगा, अभी तुम्हारे सामने लूटा हुआ माल आ जाएगा। इसके साथ ही खलाई चीफ ने डिस्क निकालकर इसके नंबर मिलाकर एक खास लफ्ज बनाया और दोनों संदूक एकदम सामने आ गए। खलाई चीफ ने हामून जादूगर से कहा, संदूक खोल कर देखो। जादूगर हामून और बिल बतौड़ी ने संदूक खोले तो एक संदूक करेंसी नोटों और दूसरा संदूक सोने की ईंटों से भरा हुआ था। दोनों खुशी से उछल पड़े। अरे वाह मेरे खलाई खालू, मेरे खलाई चीफ, तुमने तो कमाल कर दिया। बस अब इसी तरह इस मुल्क का सारा सोना, सारे करेंसी नोट लाकर मेरे कार में जमा कर दो और इस मुल्क को दिवालिया कर दो। इसके बाद हम दूसरे मुल्क को दिवालिया कर देंगे, फिर दुनिया के सारे मुल्कों की दौलत इकट्ठी कर लेंगे और फिर सारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। खलाई चीफ बोला, ऐसा ही होगा। अब मैं और अश्काली इस मुल्क के तमाम शहरों, दरियाओं और पहाड़ों का जायजा लेने जा रहे हैं। हम फिजा में गायब होकर परवाज करके ये जायजा लेंगे। इतनी देर में तुम यहीं पर रहना, हम इसी जगह वापस आएंगे। और हाँ, सोने और करेंसी नोटों के संदूक की हिफाजत करना। ओके, हम जाते हैं। खलाई चीफ और अश्काली ने अपने अपने सीने पर हाथ रखे और गायब हो गए। इनके जाते ही बिल बतौड़ी कहने लगी, हामून, मुझे लगता है ये दोनों सारी दुनिया के बादशाह और मलका बन जाएंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सामरी की जादू नगरी पर भी खुद ही कब्जा करके बैठ जाएंगे। हामून जादूगर ने गुस्से में कहा, तू फिक्र क्यों करती है? मैं भी इनके साथ हूँ। इनकी एक एक हरकत पर नजर रखूंगा। जहाँ उन्होंने कोई धोखा किया, इन्हें अपने तिलिस्मी मंत्रों से निस्तो नाबूद कर दूंगा। बिल बतौड़ी ने संदूक खोलकर कहा, कितनी चमकदार सोने की ईंटें हैं। हामून जादूगर ने चीख कर कहा, हम सामरी की जादू नगरी की ईंट से ईंट बजा देंगे। और वो सोने की ईंटें गिनने लगे। दूसरे दिन शहर के सारे अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ खबर छप गई कि खलाई मखलूक ने बैंक लूट लिया। इन पर कोई गोली असर नहीं करती। 4 सिपाही इनकी खलाई गन से जलकर राख हो गए। शहर में शोर मच गया। पुलिस को खबरदार कर दिया गया। सारे शहर को घेरे में लेकर खलाई मखलूक की तलाश शुरू हो गई। ये खबर शहर से दूर एक पुरानी खानकाह में बैठे हुए सबजपोश दरवेश को भी इसके मुरीद ने पढ़कर सुनाई और कहा, मुर्शद, ये खलाई मखलूक हमारे मुल्क को तबाह करने आई है। सबजपोश दरवेश तस्वीर फेरते हुए इस वक्त खुदा की इबादत कर रहे थे। उन्होंने आंखें खोल दी और कहा, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करेगा। हमें इस मुल्क की सलामती और अमन और अमान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम अपने फर्ज से गाफिल नहीं रहेंगे। हम अपना फर्ज अदा करेंगे और अपने मुल्क को और खल्के खुदा को खलाई मखलूक की तबाही से बचाएंगे। मुरीद ने कहा, मुर्शद, ये काम अभी से शुरू हो जाना चाहिए। सबजपोश दरवेश ने कहा, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म का इंतजार है। इसी वक्त खलाई चीफ और अश्काली गायब होकर फिजा में परवाज कर रहे थे। उन्होंने नीचे परवाज करके पहाड़ों, दरियाओं, दरिया के पुलों और डैम को भी देखा। फिर बुलंद होकर ऊपर आसमान की बुलंदी पर आ गए। खलाई चीफ कहने लगा, अश्काली, ये मुल्क काफी तरक्की याफ्ता है। हमें दुनिया के और मुल्क भी देखने चाहिए, क्योंकि हमें सारी जमीन पर कब्जा करना है और दुनिया फतह करने से पहले इस दुनिया के सारे मुल्कों का एक चक्कर लगाना जरूरी है। अश्काली ने कहा, शुमाल मगरिब की तरफ चलते हैं। और वो दोनों हवाई जहाज की रफ्तार से 100 गुना तेज रफ्तार के साथ गैबी हालत में फिजा में परवाज करने लगे। इसी रफ्तार से परवाज करते हुए वो फ्रांस पहुंच गए। उन्होंने देखा एक जेट जहाज परवाज करता पहाड़ों के दरमियान जा रहा है। खलाई चीफ ने कहा, देखो अश्काली, इन लोगों के जहाज कितने पुराने हैं, बिल्कुल गोल डब्बों की तरह हैं। ये लोग तो साइंस में हमसे बहुत पीछे हैं। आओ जरा इस जहाज का तमाशा देखते हैं। दोनों कैबी हालत में उड़ते हुए जेट जहाज के ऊपर आ गए। फिर खलाई चीफ ने जोर से हाथ मारकर जेट हवाई जहाज का एक इंजन तोड़ दिया। इंजन में आग भड़क उठी। जहाज के अंदर केबिन में बैठे हुए पायलट ने इस वक्त बटन दबाया। इंजन की आग अपने आप बुझ गई। जहाज में मुसाफिर घबरा गए। कैप्टन ने इत्तला की, ख़वातीनो हजरात, घबराने की जरूरत नहीं, इंजन में खराबी पैदा हो गई थी। हमने इंजन की आग बुझा दी है। हमारे बाकी 3 इंजन चल रहे हैं। हम हिफाजत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। खलाई चीफ और अश्काली जहाज के अंदर आ गए। वो सबको देख रहे थे। इन्हें कोई नहीं देख सकता था। जहाज में सब यूरोप के गोरे गोरे मुसाफिर बैठे थे। अश्काली ने कहा, चीफ, यहाँ के लोग बड़े गोरे हैं। हाँ, मगर इनका सारा सामान दकियानूसी है। देखो कुर्सियाँ कितनी पुरानी हैं। मेरा ख्याल है हमें इस जहाज को तबाह कर देना चाहिए। अश्काली ने कहा, हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। आखिर हम दुनिया पर तबाही फैलाकर ही दुनिया पर कब्जा करेंगे। दोनों संगदिल और जालिम थे। इन्हें किसी मुसाफिर पर रहम ना आया। खलाई चीफ कैबिन में आ गया। इसको कोई नहीं देख सकता था। अश्काली भी साथ थी। उन्होंने जहाज के स्टिक को नीचे दबाया। जहाज की नोक एकदम जमीन की तरफ हो गई और वह 700 मील फी घंटा की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। जहाज में कोहराम मच गया। पायलट इमरजेंसी सिग्नल देने लगा। स्टिक को ऊपर उठाने के लिए जोर लगा रहा था, मगर स्टिक ऊपर नहीं आ रही थी। इसे खलाई चीफ ने पांव से दबा रखा था। इसकी ताकत पायलट की ताकत से 1000 गुना ज्यादा थी। जहाज नोक की सीध में नीचे ही नीचे गिर रहा था। मुसाफिरों की चीखों पुकार गूंज रही थी और फिर जहाज एक जबरदस्त धमाके के साथ जमीन से टकरा गया
اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ سے خلائی چیف اور اشکالی مسکراتے ہوئے غیبی حالت میں باہر آ گئے۔ خلائی چیف نے کہا، ان لوگوں کے ہوائی جہاز بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ اشکالی بولی، یہ سائنس کے میدان میں ہم سے بہت پیچھے ہیں، ہم بڑی آسانی سے ان پر قبضہ کر لیں گے۔ ان میں سے کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے 270 مسافروں اور عملے کے 13 آدمیوں کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ دونوں وہاں سے پرواز کر گئے۔ اڑتے اڑتے خلائی چیف نے کہا، آگے کوئی بہت بڑا شہر آ رہا ہے۔ یہ بڑا شہر فرانس کا دارالحکومت پیرس تھا۔ پیرس میں جہاز کی تباہی کی خبر پہنچ چکی تھی، مگر شہر کی رونقیں اسی طرح جاری تھیں۔ خلائی چیف اور اشکالی شہر میں اتر آئے۔ وہ اب ظاہر ہو گئے ہوئے تھے اور عام لباس میں تھے، یعنی خلائی چیف نے کوٹ پتلون پہنا ہوا تھا اور اشکالی شلوار قمیض میں تھی۔ وہ بازار میں چل رہے تھے، کوئی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے دھیان میں چلا جا رہا تھا۔ اشکالی کہنے لگی، یہ لوگ تو گورے چٹے ہیں، یہاں کی عورتوں کے بال سنہری ہیں، یہ بڑا میک اپ کرتی ہیں۔ خلائی چیف بولا، یہ سیارہ زمین کا مغربی حصہ ہے، یہاں موسم سرد ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ کالے نہیں ہیں، اور دیکھو ان کی عمارتیں بھی خوبصورت ہیں۔ اشکالی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی، یہ لوگ ہماری طرف دیکھتے تک نہیں، کیا انہیں نہیں پتا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ اگر چاہیں تو ان کی بلڈنگ کو آگ لگا سکتے ہیں۔ خلائی چیف بولا، میرا خیال ہے انہیں تھوڑی سی اپنی طاقت دکھا دینی چاہیے۔ چلو دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ دونوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو ایک گوری میم نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا اور پھر تیز تیز قدموں سے آگے چل دی۔ اتنی دیر میں دونوں غائب ہو چکے تھے۔ غائب ہوتے ہی دونوں ایک اونچی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ غائب ہونے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ اشکالی نے کہا، ریڈی چیف؟ یس اشکالی، میں پہلی منزل کو اور تم آخری منزل کو نشانہ بناؤ گی۔ یس چیف۔ اور دوسرے ہی لمحے پہلے اشکالی کے خلائی پستول سے ایک قاتل شعاع نکل کر ماڈرن بلڈنگ کی آخری منزل سے جا ٹکرائی۔ ایک دھماکے کے ساتھ بلڈنگ کی آخری منزل شعلوں میں لپٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی خلائی چیف کی پستول سے نکلی ہوئی شعاع نے بلڈنگ کی پہلی منزل کو آگ کے شعلوں میں بدل دیا۔ عورتیں چیخیں مارتی ہوئی بھاگی۔ بلڈنگ ساری کی ساری شعلوں میں تبدیل ہو گئی تھی اور دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ کچھ لوگ جلتی بلڈنگ میں سے کود گئے، وہ نیچے گرتے ہی سڑک سے ٹکرا کر مر گئے۔ آگ بجھانے والے انجن شور مچاتے پہنچ گئے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ساری بلڈنگ تباہ ہو چکی تھی اور اس کے اندر کے لوگ، جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچی تھی، جل بھن کر راکھ ہو گئے تھے۔ خلائی چیف اور اشکالی سامنے فٹ پاتھ پر ایک طرف کھڑے اپنی لائی ہوئی تباہی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اشکالی نے کہا، چیف اس بلڈنگ نے جلنے میں اتنی دیر کیوں کی ہے؟ کہیں ہمارے خلائی پستولوں میں کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی؟ خلائی چیف بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلڈنگ میں سخت مٹیریل استعمال ہوا تھا، چلو کسی دوسری جگہ اپنے پستولوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ وہ دونوں پیرس کے بازاروں میں پھرتے پھراتے ایک لوہے کے پل کے پاس آ گئے۔ یہ پل سٹیل کا بنا ہوا تھا اور 2 سڑکوں کے اوپر بنا ہوا تھا۔ پل پر سے اس وقت کتنی ہی کاریں گزر رہی تھی۔ خلائی چیف نے کہا، اس پل پر میں اپنی خلائی پستول ٹیسٹ کروں گا، تم فائر نہ کرنا۔ اور 200 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر خلائی چیف نے پل کے درمیانی حصے پر فائر کر دیا۔ خلائی شعاع بجلی کی طرح نکل کر پل سے ٹکرائی اور دھماکے کے ساتھ پل کا درمیانی حصہ اڑ گیا اور کتنی ہی کاریں نیچے سڑک پر دوسری کاروں پر گری اور چکنا چور ہو گئی۔ لوگ کاروں میں دب گئے اور چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ خلائی چیف نے کہا، اشکالی اب تم اپنا پستول ٹیسٹ کرو۔ اشکالی نے بھی انسانی ہمدردی کا ذرا بھی خیال کیے بغیر بڑی بے رحمی کے ساتھ پل کے نیلے دروازے پر فائر کر دیا۔ پل ایک طرف سے سارے کا سارا اڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی خلائی چیف نے پل کے دوسرے دروازے پر فائر کیا اور سارے کا سارا پل اڑ گیا۔ سب کاریں سڑک پر گر کر تباہ ہو گئی۔ نہ جانے کتنے آدمی، عورتیں اور بچے ان کے نیچے آ کر مر گئے۔ لوگ اس طرف دوڑے۔ خلائی چیف نے ہنس کر کہا، ہمارے خلائی پستول بالکل ٹھیک ہیں، اس زمینی سیارے کی فضا ہماری خلائی شعاؤں کے لیے بڑی مفید ہے، ذرا بھی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ چلو اب کسی اور طرف چلتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہلاک کرنے اور ان عمارتوں اور پلوں کو تباہ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اب تو ہم اس زمین پر قبضہ کرنے ہی والے ہیں۔ اشکالی نے کہا، چیف میرا خیال ہے ہمیں لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہیے، بلڈنگ اور پلوں کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں، آخر ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ یس اشکالی، تم نے ٹھیک مشورہ دیا ہے، چلو کچھ لوگوں پر اپنے خلائی پستول ٹیسٹ کرتے ہیں۔ لاہور والے بینک کو لوٹتے وقت تو ہمارے فائٹ سے سپاہی 1 سیکنڈ میں جل کر راکھ بن گئے تھے، دیکھتے ہیں یہاں کے گورے کتنی دیر لگاتے ہیں۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک کلب دیکھا جس کے اندر سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کلب میں عورتیں اور مرد ڈانس کر رہے تھے۔ خلائی چیف اور اشکالی کلب کے اندر داخل ہو کر دروازے کے پاس کاؤنٹر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ وہ غیبی حالت میں تھے، انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اشکالی نے کہا، اوکے باس، شروع ہو جائیں۔ ایک دم سے دونوں کی خلائی پستولوں سے قاتل شعاعیں نکل کر ڈانس کرتی عورتوں اور مردوں پر گری اور دھماکے کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسم جل بھن کر راکھ بن گئے۔ ہر طرف کلب میں بھگدڑ مچ گئی۔ اشکالی اور خلائی چیف اوپر تلے فائر کر رہے تھے۔ کلب میں جتنے آدمی اور عورتیں ڈانس کر رہے تھے سارے کے سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ کلب کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور پردے اور دیواروں پر لگی تصویریں اور کرسیاں اور میزیں سب جلنے لگے۔
ओके अशकाली, सब ठीक है। हमारे खिलाई पिस्तौल हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। वो भड़कते हुए शोलों में से निकलकर बाहर आ गए। बाहर बाजार में लोग खौफजदा होकर जमा हो गए थे। दूर से फायर ब्रिगेड के इंजन की आवाज आने लगी। खिलाई चीफ और अशकाली वहाँ से आगे चले गए। आगे रेलवे लाइन थी। दूर से रेलगाड़ी चली आ रही थी। खिलाई चीफ ने कहा, ये इन लोगों की ट्रेन है, आओ इस पर भी खिलाई पिस्तौल आजमाते हैं। दोनों रेलवे लाइन से हटकर घात लगाकर खड़े हो गए। जो ही रेलगाड़ी इनके सामने से गुजरने लगी, उन्होंने फायर खोल दिया। खिलाई शुआओं ने रेलगाड़ी से टकराकर इसको धमाके से उड़ा दिया। डब्बे उलट गए, इंजन तबाह हो गया। हर तरफ आग ही आग भड़क उठी। हर तरफ इंसानी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों संगदिल खिलाई इंसान हंसते हुए वहाँ से चल दिए। दोनों एक बाजार के चौक में आकर फिजा में बुलंद हो गए। उन्होंने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते उड़ते खिलाई चीफ ने कहा, हमें वापस अपने अड्डे पर चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम इसी शहर से अपने हमलों का सिलसिला शुरू करते हैं, जहां हमने बिल बतौड़ी और हामून जादूगर के गार में अपना खुफिया अड्डा बनाया है। इस मुल्क में और इसके आसपास के मुल्कों को अपना निशाना बनाते हैं। इसके बाद मगरिब के शहरों में आकर इन्हें फतह कर लेंगे। अशकाली ने कहा, अच्छा ख्याल है, मगर चीफ, हमें हामून जादूगर और चुड़ैल बिल बतौड़ी की क्या जरूरत है? हम इनके बगैर भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। खिलाई चीफ ने कहा, हमें एहतियात के तौर पर कुछ मुद्दत के लिए इन्हें अपने साथ मिलाकर रखना होगा, क्योंकि हमारे पास पूरा खिलाई सामान और पूरी लेबोरेटरी मौजूद नहीं है। अगर किसी वक्त हमारी कोई ताकत कमजोर हो गई तो फिर हमें इस जादूगर और बिल बतौड़ी चुड़ैल से काम लेना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है। अशकाली ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों बिजली की रफ्तार के साथ हवा में परवाज करते हुए वापस लाहौर शहर के बाहर अपने खुफिया गार में आ गए। इस वक्त बिल बतौड़ी और हामून जादूगर सोने की ईंटों को वापस संदूक में बंद कर रहे थे। खिलाई चीफ ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे थे? हामून जादूगर ने फौरन हाथ छाड़कर कहा, मेरे आका, हम सोने की ईंटों को गिन रहे थे कि कहीं कोई ईंट कम तो नहीं है। बिल बतौड़ी ने हंसकर कहा, और हम ये भी देख रहे थे कि इनमें कोई नकली ईंट तो नहीं आ गई। ये सब असली है ना? खिलाई चीफ ने पूछा। यस खिलाई खालू, बिल्कुल असली पाले का सोना है। ऐसा सोना तो कहीं मिलता ही नहीं। खिलाई चीफ ने कहा, हमने आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया है, दूसरे मुल्कों के लोगों को भी देख आए हैं। खिलाई जादूगर ने कहा, खिलाई खालू, वो लोग तो चुटकी बजाते ही हमारे काबू में आ जाएंगे। इनके पास ना तो कोई जादूगर है ना चुड़ैल, और वो कोई तिलिस्म भी नहीं जानते। हमारे मुल्क में तो एक से एक बड़ी चुड़ैल रहती है। अशकाली ने कहा, ठीक है, हम बड़ी जल्दी दुनिया पर कब्जे का मिशन शुरू करने वाले हैं। तुम लोगों को हदायत की जाती है कि आइंदा इन संदूकों को हाथ ना लगाना। हामून जादूगर ने अपने हाथ पर दूसरा हाथ मारकर कहा, खिलाई खाला अशकाली, मैं क्या करूं? ये कम वक्त मेरा हाथ मेरे कहने में नहीं है। आप फिक्र ना करें, अब मैं इस कमीने हाथ को हाथ नहीं लगाने दूंगा। खिलाई चीफ ने कहा, ठीक है, अब तुम लोग गार में बाहर जाकर बैठो, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। अच्छा खिलाई खालू जी, चलो बिल बतौड़ी बाहर चले, खिलाई खालू मीटिंग करने वाले हैं। जादूगर हामून और बिल बतौड़ी कोठरी से निकल गए। अशकाली और खिलाई चीफ बैठकर गौर करने लगे कि वहाँ खिलाई लेबोरेटरी कायम की जाए या फ्रांस के किसी शहर में। अशकाली ने कहा, फ्रांस में हमें साइंसी आलात मिल जाएंगे। वो मुल्क इस मुल्क के मुकाबले में तरक्की याफ्ता है, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। खिलाई चीफ ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फ्रांस साइंस में बहुत आगे है, वहाँ हमें अपनी लेबोरेटरी के लिए साजो सामान आसानी से मिल जाएगा। तो फिर चलो एक बार फिर फ्रांस चलते हैं और वहाँ की पहाड़ में कोई ऐसी खुफिया जगह तलाश करते हैं जहाँ हम अपनी लेबोरेटरी तैयार कर सकें। हमारे लिए फासला कोई अहमियत नहीं रखता, हम 2 मिनट में फ्रांस से यहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे हम दुनिया फतह करने की मुहिम का आगाज यहाँ से ही शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा अंदाजा है यहाँ के लोग भोले भाले हैं, ये बड़ी जल्दी हमारे काबू में आ जाएंगे। दोनों कोठरी में से निकल आए। बिल बतौड़ी और हामून जादूगर बाहर कार में बैठे बातें कर रहे थे। खिलाई चीफ ने कहा, हम एक और जरूरी काम से जा रहे हैं, जल्दी वापस ना आए तो फिक्र ना करना, और हाँ, हमारे संदूकों की हिफाजत करना। ओके चीफ, जादूगर हामून ने बड़े अदब से कहा। अशकाली और खिलाई चीफ ने अपने अपने हाथ सीने पर रखे और गायब हो गए। इनके गायब होते ही जादूगर हामून उठ खड़ा हुआ और गुस्से में आकर बोला, अब सामरी की दुनिया पर हमारा कब्जा होगा। मैं सामरी के तख्त पर बैठूंगा और तुम मेरी मलका होगी। बिल बतौड़ी खुशी से चीख मारकर बोली, मैं मलका बनूंगी? जादूगर हामून ने कहा, अब हमें सामरी को तिलिस्मी लॉकेट वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब इसका नौकर नहीं हूँ। एकदम से एक जिन नमूदार हुआ और बोला, हामून, तुझे सामरी ने याद किया है, चल अभी मेरे साथ चल। बिल बतौड़ी, तू भी चल। हामून जादूगर डर कर सहम गया। अच्छा जी, सामरी जी ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। चल बिल बतौड़ी, तू भी चल। मगर दिल में कहने लगा, जितना मुझ पर हुक्म चलाना है चला ले सामरी, इसके बाद तू मेरा गुलाम होगा और मैं तेरा आका होऊंगा। इसके बाद बिल बतौड़ी, हामून और जिन तीनों गायब हो गए। कोहमालिया की महानाग के मंदिर की पुजारी राकेश ने जकूटा की ताकत छीनकर अपने अंदर जज़ब कर ली थी। वो सारे इलाकों के मंदिरों का पुजारी बन गया था और इसने जकूटा को पत्थर का बुत बनाकर मंदिर के पीछे एक झील में डिबो दिया था, जबकि दूसरी तरफ उमरू अय्यार, कामई नागिन और नस्तूर एक काफले के साथ सफर करते जकूटा की तलाश में मुल्क हिंदुस्तान की तरफ चले आ रहे थे। इन्हें शीशनाग ने बताया था
कि ज़कूटा को हिमालय के मंदिरों में किसी जगह पर कैद है। इससे आगे शीशनाग कुछ नहीं बता सका था। काफिला कई दिनों के बाद हिंदुस्तान के शुमाल में एक शहर पहुंच गया। यहाँ से उम्र अय्यार, नस्तूर और कामई नागिन ने पता किया कि कोहमालिया के मंदिर कहाँ हैं। इन्हें बताया गया ये मंदिर ऊपर हिमालय के पहाड़ों के दामन में है। चुनाचे उम्र अय्यार, नस्तूर और कामई नागिन गायब होकर हवा में उड़ते हुए हिमालय की पहाड़ियों की तरफ चल दिए। गायब होकर उड़ते हुए इनकी रफ्तार बड़ी तेज हो जाती थी। चुनाचे वो शाम होने से पहले पहले कोहमालिया के इलाके में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई थी। नीचे पहाड़ियों के दामन में कहीं कहीं मंदिरों के मीनार गुरूब होते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। नस्तूर ने नीचे देखते हुए कहा, उमरू भाई, मेरा ख्याल है यही महानाग के मंदिर हैं। कामई बोली, हाँ, मुझे यहाँ सांपों की बू महसूस हो रही है। उमरू बोला, मगर कामई बहन, तुम्हें बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि शीशनाग ने तुम्हें मना किया है कि महानाग के सांपों के करीब भी मत जाना। वो तुमसे ज्यादा जहरीले और ताकतवर हैं। हाँ उमरू, मैं जानती हूँ, महानाग एक शैतानी सांप है। इसके सारे सांप ऐसे ही हैं। तुम फिक्र ना करो। हमें अपने भाई ज़कूटा को भी ढूंढना है। इसके लिए तो हम हर किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार हैं। नस्तूर, उमरू और कामई आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए नीचे एक वादी में आ गए। यहाँ पहाड़ों की ढलानों पर सुनहरी धूप में खेत और कहीं कहीं मंदिर दिखाई दे रहे थे। नस्तूर ने कहा, यही महानाग के मंदिर होंगे। वहाँ चलकर किसी से पूछ लेते हैं। उमरू अय्यार ने कहा, नस्तूर, तुम बड़े सीधे और भोले जिन हो। खबरदार, तुम यहाँ किसी से कोई बात ना करना, मैं पूछूंगा। कामई बोली, ठीक है उमरू भाई, तुम पता करो, हम इसी जगह बैठते हैं, मैं अभी पता करके आता हूँ। ये कहकर उमरू अय्यार मंदिरों की तरफ परवाज कर गया। एक जगह वो दरख्त के पास उतरा। इसका हुलिया पहले भी इंसानी ही था। सामने एक मंदिर बना हुआ था। देहाती लोग पूजा करने मंदिर में जा रहे थे। उमरू अय्यार ने एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ महानाग जी के मंदिर कहाँ हैं? इस आदमी ने कहा, भाई, ये सारे मंदिर महानाग जी के ही मंदिर हैं। तुम्हें किस मंदिर में जाकर पूजा करनी है? उमरू अय्यार ने कहा, ठीक है भाई, मुझे यही मालूम करना था। उमरू अय्यार तो पता करके चला गया, मगर वो आदमी जिसने इसे मंदिरों के बारे में बताया था वहाँ से सीधा पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। एक पहाड़ी पर बेपनाह जंगली दरख्त उगे हुए थे। इन दरख्तों के पीछे जहाँ पहाड़ी की पिछली ढलान खत्म होती थी, वहाँ एक कुदरती गार बना हुआ था, जिसका मुंह जंगली झाड़ियों ने ढांप रखा था। इसी गार में माता नागनी अपने 2 सांपों के साथ रहती थी। माता नागनी किसी जमाने में महानाग मंदिर की सबसे बड़ी पुजारन होती थी, मगर राकेश पुजारी ने ज़कूटा की ताकत मिल जाने के बाद इसे छुट्टी दे दी थी और हुक्म दे दिया था कि तुम कभी महानाग मंदिर की तरफ नहीं आ सकोगी। अगर तुम्हें महानाग मंदिर में देखा गया तो तुम्हें इसी वक्त कत्ल कर दिया जाएगा। माता नागनी को राकेश पुजारी पर सख्त गुस्सा था और वो हर लम्हे इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेने और अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए बेचैन रहती थी। मगर इसके पास राकेश पुजारी का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। इसके सांप बड़े जहरीले थे। वो पत्थर को डसते तो पत्थर पिघल जाते थे, मगर ये सांप राकेश पुजारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। माता नागनी ने इन सांपों को अपने बच्चों की तरह पाला था। वो इन्हें अपना दूध पिलाती थी और हमेशा इन्हें अपने पास रखती थी। वो आदमी जिससे उमरू अय्यार ने महानाग मंदिरों के बारे में पूछा था, गार के पास आकर रुक गया। इसने इधर उधर देखा कि कोई इसे देख तो नहीं रहा, फिर झाड़ियों को हटाया और गार में दाखिल हो गया। गार में दाखिल होते ही माता नागनी के दोनों सांपों ने फन खड़े करके जोर से फनकारें मारी। माता नागनी ने बुलंद आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आदमी ने जवाब दिया, माता, मैं तुम्हारा नौकर कालू हूँ। माता नागनी ने कहा, आ जाओ कालू, और फिर अपने सांपों के सर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरकर कहने लगी, मेरे बच्चों, ये कालू है जो मेरी और तुम्हारी खिदमत करता है। कालू ने अंदर आकर झुककर माता नागनी को नमस्कार किया और बोला, माता, एक अजीबो गरीब मुसाफिर हमारे इलाके में आया है। वो मुझसे महानाग के मंदिरों के बारे में पूछ रहा था। माता, मैंने इसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया है कि इसके अंदर कोई बड़ी जबरदस्त ताकत छुपी हुई है। माता नागनी के कान खड़े हो गए। वो जानती थी कि कालू झूठ नहीं बोल रहा। इसके पास इतना इल्म है कि वो आदमी के चेहरे को देखकर इसकी ताकत का अंदाजा लगा लेता है। माता नागनी ने पूछा, वो आदमी कहाँ ठहरा हुआ है? कालू बोला, माता, मेरा ख्याल है वो देवी के आश्रम वाली सराय में ठहरा हुआ है, क्योंकि वो इसी तरफ गया था। माता नागनी ने आंखें बंद कर ली। वो कुछ सोच रही थी, फिर इसने आंखें खोल दी और कालू से कहा, तुम वापस जाओ और इस आदमी से मिलकर मालूम करो कि वो कौन है और किस लिए यहाँ आया है, मगर होशियार रहना, इसे मेरे बारे में कुछ ना बताना। बहुत अच्छा माता नागनी, मैं अभी जाता हूँ। कालू गार से निकलकर देवी के आश्रम वाली सराय की तरफ रवाना हो गया। उमरू अय्यार इस दौरान नस्तूर और कामई नागिन को बता चुका था कि यही महानाग के मंदिर हैं। नस्तूर ने कहा, इसका मतलब है हम अपने टारगेट पर पहुंच चुके हैं। अब हमें किसी जगह ठहरने का इंतजाम करना चाहिए। सराय ठीक रहेगी, वहाँ हम आम मुसाफिरों की तरह रहेंगे ताकि लोगों से मजीद मालूमात हासिल कर सकें। इस तरह हो सकता है कि ज़कूटा का कोई सुराग मिल जाए। वहाँ देवी के आश्रम वाली सिर्फ एक ही सराय थी। नस्तूर, उमरू अय्यार और कामई नागिन इसी सराय में आ गए। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और मशल की रोशनी में बैठकर बातें करने लगे। ज़कूटा अगर इसी जगह पर है तो वो कहाँ पर हो सकता है?
रात हो गई थी। महानाग के मंदिरों में घंटियां बजने लगी थी, मशालें रोशन हो गई थी। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नस्तूर ने कहा, इस वक्त कौन आ गया है? कामई नागिन ने कहा, हो सकता है सराय का आदमी हमारे लिए खाना वगैरह लेकर आया हो। उमरू अय्यार ने कहा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कालू अंदर आ गया। इसके हाथ में थाल पकड़ा हुआ था जिसमें मिठाई थी। कहने लगा, महाराज आप परदेसी हैं, यहाँ जो भी परदेसी मुसाफिर आता है मैं इसके लिए मिठाई जरूर लाता हूँ। ये मैं माता जी के हुक्म पर करता हूँ। माता जी कहती हैं कि परदेसी मुसाफिरों की खिदमत करने वाला भगवान के दर्शन कर लेता है। उमरू अय्यार, नस्तूर और कामई नागिन दुबले पतले आदमी कालू की बातें खामोशी से सुन रहे थे और से इसका जायजा भी ले रहे थे। नस्तूर ने कहा, भाई तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी माताजी बड़ी अच्छी खातून हैं जिन्होंने तुम्हें ये नेकी का काम बताया है। उमरू अय्यार कालू की तरफ गौर से देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या करते हो? मैंने तुमसे मंदिरों के बारे में भी पूछा था। कालू ने कहा, मेरा नाम कालू है जी, मैं मंदिरों में आने वाले यात्रियों की खिदमत करता हूँ, मेहनत मजदूरी भी करता हूँ। आप ठीक कहते हैं, मैंने आपको मंदिरों के बारे में बताया था, वहीं से मैंने अंदाजा कर लिया कि आप मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, इसीलिए आपकी खिदमत करने मिठाई लेकर हाजिर हुआ हूँ। कामई नागिन खामोश थी। नस्तूर ने कहा, भाई यहाँ महानाग का मंदिर कहाँ है? वहाँ कौन कौन पुजारी रहता है और बड़े पुजारी का नाम क्या है? कालू समझ गया ये लोग किसी बड़ी मार पर आए हैं, कोई बहुत पुरस्कार खुफिया मकसद लेकर आए हैं। इसने भोलेपन से कहा, महाराज हर मंदिर का अपना अपना पुजारी होता है, मगर राकेश पुजारी सब पुजारियों का राजा है, बाकी सारे मंदिरों के पुजारी इसके गुलाम हैं। कामी नागिन ने सवाल किया, राकेश पुजारी में ऐसी कौन सी बात है कि सारे पुजारी इसके गुलाम बन गए? कालू ने कहा, महाराज राकेश पुजारी के पास बड़ी जबरदस्त ताकत है, इसकी ताकत का मुकाबला कोई पुजारी, कोई आदमी, कोई जादूगर नहीं कर सकता। उमरू अय्यार ने पूछा, ये ताकत पुजारी राकेश ने कहाँ से हासिल की है? क्या वो कोई बहुत बड़ा जादूगर है? कालू ने कहा, हाँ महाराज, वो बहुत बड़ा जादूगर भी है। लोग कहते हैं इसने कोई ऐसा चिल्ला काटा है जिसके बाद रातों रात वो जबरदस्त ताकत का मालिक बन गया है। मगर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? नस्तूर ने भोलेपन से कहा, भाई हमें अपने भाई की तलाश है। उमरू अय्यार ने नस्तूर का हाथ जोर से दबाया और कालू से कहा, नहीं कालू, हम किसी की तलाश में नहीं आए, हमारा एक भाई जरूर गुम हो गया है, मगर यहाँ तो हम मंदिरों को देखने और इनके दर्शन करने आए हैं। कालू हाथ जोड़कर उठा और बोला, अच्छा महाराज मैं चलता हूँ, ये थाल मैं सुबह ले जाऊंगा। मिठाई का थाल वहीं छोड़कर कालू कमरे से निकला और सीधा माता नागनी के गार की तरफ चल पड़ा। इसके जाने के बाद उमरू अय्यार नस्तूर को डांटने लगा, तुमने इसे ये क्यों कहा कि हम अपने भाई की तलाश में आए हैं? खुदा जाने वो कौन है, दुश्मन है कि दोस्त है? बात करने से पहले जरा सोच तो लिया करो। नस्तूर बोला, अरे भाई उमरू, मैंने तो इसलिए पूछ लिया था कि शायद वो हमें ज़कूटा के बारे में कुछ बता दे। कामई नागिन ने भी नस्तूर को समझाते हुए कहा, खुदा का शुक्र है तुमने ज़कूटा का नाम नहीं ले लिया। नस्तूर भाई, यहाँ हमें बड़ी राजदारी से काम लेना होगा, क्या खबर कोई दुश्मन का आदमी ही हो। नस्तूर ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा बहन, अब मैं राजदारी से काम लूंगा, लेकिन आखिर मैं भी जिन हूँ। उमरू अय्यार ने कहा, ठीक है तुम जिन हो, मगर बड़े नेक दिल और भोले भाले जिन हो। नस्तूर ने कहा, उमरू भाई जरा वो मिठाई का थाल तो आगे करो, लड्डू देखकर मेरा जी ललचा रहा है। उमरू ने एक लड्डू उठाकर थाल आगे कर दिया। इधर कालू ने माता नागनी को जाकर बताया कि वो 3 परदेसी मुसाफिर हैं, इनमें एक औरत है, लगता है वो कोई बड़ा पुरस्कार मकसद लेकर यहाँ आए हैं। एक तो ये भी कह रहा था कि हम अपने भाई की तलाश में आए हैं। माता नागनी सोचने लगी, फिर बोली, तुम इनकी निगरानी करते रहो, इस तरह कुछ पता नहीं चल सकता कि वो कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। हो सकता है वो परदेसी मुसाफिर ही हों और अपने किसी भाई की तलाश में ही आए हों। बहरहाल तुम इनकी जासूसी करते रहो, वो जहाँ जाएं इनके पीछे रहना। कालू बोला, जो हुक्म माता नागनी। दूसरे रोज कालू मिठाई वाला थाल लेने के बहाने नस्तूर की कोठरी की तरफ गया तो दरवाजा बंद था। कालू ने दरवाजे के सुराख में से अंदर झांक कर देखा। नस्तूर, उमरू अय्यार और कामई नागिन बातें कर रहे थे। नस्तूर कह रहा था, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं मंदिरों का एक चक्कर लगा कर आता हूँ, शायद हमें अपने दोस्त का कोई सुराग मिल जाए। उमरू अय्यार बोला, ठीक है जरूर जाओ, मगर गायब होकर जाना। नस्तूर ने इसे झिड़क कर कहा, हाँ भाई, गायब होकर ही जाऊंगा, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। उमरू अय्यार और कामई नागिन हंसने लगे। नस्तूर ने अपने तिलिस्मी लॉकेट को चूमा और गायब हो गया। इसे गायब होता देखकर कालू जल्दी से दरवाजे से अलग होकर तेज तेज कदमों के साथ दरख्त के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर भागता हुआ माता नागनी के गार में पहुंचा और बोला, माता, मैं एक अजीब बात देख आया हूँ। बताओ क्या देख कर आए हो? माता नागनी ने अपने सांपों को प्यार करते हुए कहा। कालू बोला, माता, इनमें से एक आदमी मेरे देखते ही देखते गायब हो गया, कहता था मैं अपने दोस्त की तलाश में जा रहा हूँ। माता नागनी का हाथ सांपों को प्यार करते करते रुक गया। इसकी आंखों में अजीब चमक पैदा हो गई। इसने कालू से कहा, कालू, ये लोग कोई बहुत बड़े जादूगर हैं, अब तुम वहाँ मत जाना, मैं खुद भेस बदल कर जाऊंगी और असल हकीकत मालूम करूंगी कि ये खतरनाक जादूगर हमारे इलाके में क्या करने आए हैं। खबरदार, ये बात किसी पर जाहिर ना करना। कालू बोला,
नहीं माता नागनी, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा। इसी रोज दोपहर के बाद माता नागनी ने एक सपेरन का भेष बदला, पिटारी में अपने दोनों सांप डाले और बीन बजाती देवी के आश्रम की सराय में पहुंच गई। कालू ने इसे बता दिया था कि वो लोग किस कोठरी में ठहरे हुए हैं और इनके हुलिये क्या हैं। माता नागनी सपेरन के रूप में सराय के बाहर बीन बजाकर सांपों का तमाशा दिखाने लगी। नस्तूर अभी तक वापस नहीं आया था। उमरू अय्यार और कामई नागिन कोठरी में थे। बीन की आवाज सुनकर कामई बोली, चलो कोई सपेरा बाहर आया है, सांपों का तमाशा देखते हैं। सपेरन माता नागनी बीन बजा रही थी। इसकी निगाहें सराय के बरामदे में इस कोठरी पर जमी हुई थी, जिसके बारे में कालू ने बताया था कि 3 पुलिसरार अजनबी, जिनमें एक औरत भी है और जिनमें से एक आदमी इसकी आंखों के सामने गायब हुआ था, इसी कोठरी में रहते हैं। माता नागनी बीन बजा रही थी। सांपों की पटारी इसके सामने पड़ी थी, जिसमें इसके दोनों चहीते सांप बंद थे। माता नागनी ने देखा कि कोठरी का दरवाजा खुला और अंदर से एक मर्द और एक औरत निकलकर बाहर आए। माता नागनी समझ गई कि यही पुलिसरार मर्द और औरत हैं, जिनका तीसरा साथी गायब होकर कहीं गया हुआ है। सांप का तमाशा देखने के लिए वहाँ कुछ और मुसाफिर बच्चे और औरतें भी जमा हो गई थी। उमरू अय्यार और कामई नागिन भी वहाँ आकर खड़े हो गए और सपेरन को बीन बजाते देखने लगे। माता नागनी ने बड़े गौर से उमरू अय्यार और कामई नागिन को देख लिया था। माता नागनी ने महसूस किया कि बंद पटारी के अंदर सांप बेचैन हो रहे हैं और फनकारे मार रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। माता नागनी की सारी उम्र अगरचे महानाग के मंदिरों में सांपों के दरमियान गुजरी थी और 2 सांपों को इसने अपना दूध पिलाकर बच्चों की तरह पाला था, मगर वो सांपों की पूरी सार दुनिया से वाकिफ नहीं थी। वो सांपों की जुबान नहीं जानती थी। जब पिटारी के अंदर दोनों सांपों ने बड़ा शोर मचाया तो माता नागनी ने बीन बजानी बंद करके पिटारी का मुंह खोल दिया और सांपों को डांटते हुए बोली, मेरे बच्चों, क्यों शोर मचा रहे हो? चलो अब इन लोगों को तमाशा दिखाओ। वो बीन बजाने लगी। इसका ख्याल था कि सांप बीन की आवाज पर झूमने लगेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। पटारी से निकलते ही दोनों सांप इस तरफ दौड़े जिस तरफ लोगों में कामई नागिन और उमरू अय्यार खड़े थे। दोनों सांपों ने कामई नागिन के सामने जाते ही अपना फन झुकाकर नमस्कार किया और एक जुबान होकर कहा, शीशनाग देवी को हमारा नमस्कार। कामई नागिन ने मुस्कुराकर सांपों की जुबान में कहा, मेरा भी नमस्कार। अब तुम लोग वापस जाकर लोगों को तमाशा दिखाओ। यहाँ लोग तुम्हारा तमाशा देखने आए हैं, मेरा राज फाश ना करो। दोनों सांप नमस्कार करके वापस मुड़ गए। माता नागनी ने ये तमाशा देखा तो हैरान रह गई। इसने भी दूसरे लोगों के साथ देखा था कि सांपों ने कामई नागिन के सामने जाकर अपने फन झुका दिए थे और फिर सिस्कारों में कामई नागिन और सांपों की आपस में कुछ बातचीत हुई थी। माता नागनी को अब पूरा यकीन हो गया कि ये लोग आम इंसान नहीं हैं, बल्कि कोई खलाई मखलूक हैं। और कामई के बारे में तो वो जरूर समझ गई थी कि सांपों ने इसको सलाम किया है तो ये जरूर या तो खुद नागिन है या सांपों का तिलिस्म जानती है। माता नागनी ने तमाशा खत्म किया, पटारी उठाई और वापस अपने गार में आ गई। इसने सपेरनों वाला लिबास उतार दिया और सोचने लगी कि इन लोगों के दिल का राज कैसे मालूम किया जाए कि ये महानाग के मंदिरों में किस लिए आए हैं और ये महानाग के राकेश पुजारी के दुश्मन हैं, तो इनके साथ दोस्ती की जाए और इनसे मिलकर राकेश पुजारी का तख्ता उलट दिया जाए। माता नागनी ने कालू की मदद लेने की बजाय खुद मामले की खोज लगाने का फैसला कर लिया। वो देर नहीं करना चाहती थी। इसे डर था कि कहीं ये लोग यानी उमरू अय्यार, कामई नागिन और नस्तूर कहीं वहाँ से चले ना जाएं। माता नागनी हर हालत में इन लोगों को दोस्त बनाकर इनकी ताकत से जालिम पुजारी राकेश से अपनी बेइज्जती का बदला लेना और इसका राजपाट उलट देना चाहती थी। माता नागनी ने अपने सांपों को गार में ही पटारी में बंद कर दिया और खुद आम औरतों का लिबास पहनकर सराय की तरफ चल पड़ी। इस वक्त सराय की कोठरी में उमरू अय्यार और कामई नागिन बैठे बातें कर रहे थे। उमरू अय्यार कह रहा था, इन सांपों ने तुम्हें सलाम किया था, तुम्हें इनसे जकूटा के बारे में पूछना चाहिए था कि वो कहाँ पर हैं। कामई नागिन ने कहा, ये राज वो सांप मालूम नहीं कर सकते थे, मैं इनकी शक्ल देखकर ही समझ गई थी ये आम किस्म के सांप हैं और जमीन में छुपे हुए राज नहीं जानते। उमरू बोला, अभी तक नस्तूर वापस नहीं आया, खुदा जाने कहाँ होगा, कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। कामई नागिन ने कहा, शायद नस्तूर आ गया है। उमरू बोला, इसे दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है, वो गायब होकर भी अंदर आ सकता है। दूसरी बार दरवाजा खटका तो उमरू ने कहा, आजो भाई, कुंडी नहीं लगी हुई, दरवाजा खुला है। माता नागनी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उमरू और कामई नागिन ने इसे फौरन पहचान लिया कि ये वही सपेरन है। उमरू ने कहा, तुम वो सपेरन नहीं हो जो तमाशा दिखाती थी। माता नागनी सोच कर आई थी कि वो इन लोगों के साथ खुलकर बात करेगी। इसने कहा, भाई मैं वही सपेरन हूँ, मैं पहाड़ी के गार में रहती हूँ, मेरा नाम माता नागनी है, कभी कभी मैं सपेरन बनकर सांपों का तमाशा दिखाने आ जाती हूँ। उमरू ने कहा, तुम यहाँ किस लिए आई हो, क्या तुम्हें हमसे कोई काम है? माता नागनी कहने लगी, सुनो मेरे भाई, मैं जानती हूँ तुम यहाँ अपने किसी भाई की तलाश में आए हो। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे साथ एक ऐसा आदमी भी है जो गायब हो जाता है। उमरू और कामई माता नागनी का मुंह तकने लगे। तुम क्या कहना चाहती हो? माता नागनी ने कहा, मैं साफ दिल से बात कर रही हूँ, मेरी बात गौर से सुनो।
महानाग मंदिर का पुजारी राकेश बड़ा जालिम है। इसने मेरा हक मारा है और मुझे महानागनी के तख्त से उतारकर जलील किया है। मैं अपना तख्त वापस लेना चाहती हूँ। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी खोई हुई इज्जत तुम्हारी ताकत से ही हासिल कर सकती हूँ। इतने में नस्तूर भी आ गया। वो आते ही जाहिर हो गया। माता नागनी को देखा तो हैरान होकर बोला, ये कौन है उमरू? मैं ख्वामखा इसके सामने जाहिर हो गया। माता नागनी बोली, मुझसे तुम्हारा ये राज छुपा हुआ नहीं है भाई। और फिर माता नागनी ने नस्तूर को भी सारी बात बता दी। नस्तूर ने कहा, माता नागनी, बात असल में ये है कि हमारा एक साथी गायब हो गया है। हमें पता चला है वो महानाग मंदिरों के किसी मंदिर में कैद है। अगर तुम हमें हमारा साथी जकूटा मिला दो तो हम भी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उमरू और कामई नागिन ने भी नस्तूर की तायीद की। कामई नागिन ने माता नागनी को अपने बारे में बिल्कुल ना बताया कि वो नागिन है और औरत का रूप बदला हुआ है। माता नागनी सोचने लगी और फिर बोली, जकूटा नाम का कोई आदमी मैंने नहीं सुना कि यहाँ आया हुआ हो। इतना मुझे जरूर मालूम है कि राकेश पुजारी ने किसी आसमानी मखलूक से ताकत हासिल की है और इसी ताकत की वजह से वो सारे मंदिरों पर कब्जा कर चुका है। उमरू कहने लगा, माता नागनी, तुम हमें सिर्फ ये पता करा दो कि जिस आसमानी मखलूक से पुजारी राकेश ने ताकत हासिल की है वो कहाँ पर है और इसका नाम क्या है। इसके बाद हम खुद देख लेंगे। माता नागनी पक्का वादा करके कि वो पूरी मालूमात हासिल कर लेगी वापस चली गई। इसने कालू की ड्यूटी लगा दी। कालू 2 दिन तक सुराग रसानी करता रहा, मगर वो कुछ मालूमात हासिल ना कर सका। माता नागनी नस्तूर, उमरू और कामई नागिन के पास आई और कहने लगी, मेरा जासूस भी कुछ मालूम नहीं कर सका। पुजारी राकेश बड़ा मक्कार है। इसने किसी को कुछ नहीं बताया कि इसकी ताकत का राज क्या है। नस्तूर ने पूछा, तुमने पुजारी को देखा है? वो किस किस्म की ताकत रखता है? माता नागनी कहने लगी, मुझे इतना याद है कि अगर इसे किसी चट्टान को 2 टुकड़े करना होता है या अपनी कोई जबरदस्त ताकत दिखानी होती है तो वो ज़ेबिनोफ का नारा लगाता है। ज़ेबिनोफ का नाम सुनकर नस्तूर, उमरू अय्यार और कामई नागिन तीनों एकदम उछल पड़े। अरे माता नागनी, तुमने तो सारा मुअम्मा ही हल कर दिया। ज़ेबिनोफ का नारा हमारा गुमशुदा दोस्त जकूटा ही लगाया करता है, जो असल में कोकाफ का एक जिन है। माता नागनी कहने लगी, बस अब मैं समझ गई हूँ। पुजारी राकेश ने तुम्हारे कोकाफ के जिन की ताकत हासिल कर रखी है। नस्तूर ने कहा, और इसने जकूटा को जरूर किसी जगह कैद में डाल रखा होगा। तुम किसी तरह ये मालूम करो कि जकूटा हमारा दोस्त किस जगह पर कैद है। माता नागनी ने कहा, ये काम मुश्किल जरूर है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा है। मैं फिर से महानाग के मंदिरों की महानागनी बन जाऊंगी। माता नागनी चली गई। इसने जाते ही कालू को सारी बात बयान कर दी और कहा, कालू, अब तुम्हारा काम है कि तुम पता करो जकूटा जो कोकाफ का जिन है, पुजारी राकेश ने इसे किस जगह कैद कर रखा है। कालू बड़ा होशियार और चालाक आदमी था। पुजारी राकेश भी इस पर भरोसा करता था। वो इसी रोज पुजारी राकेश के पास गया। पुजारी राकेश महानाग के मंदिर में अपने शानदार चांदी के तख्त पर बैठा मंदिर के मुलाजमों में मिठाई बांट रहा था। एक सांप इसकी गर्दन में लिपटा हुआ था। जैसे ही कालू इसके सामने पहुंचा, सांप ने जोर से फनकार मारी। कालू जल्दी से पीछे हट गया। पुजारी राकेश फौरन समझ गया कि कालू किसी बुरी नीयत से आया है, मगर वो खामोश रहा। इसने कालू से पूछा, क्या बात है कालू, तुम किस लिए आए हो? कालू ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मैं भी मिठाई लेने आया हूँ। पुजारी ने इसको भी मिठाई दी और कालू मिठाई लेकर चला गया। वो वहाँ ठहरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि पुजारी के सांप को इसकी नीयत मालूम हो गई है। कालू के जाने के बाद पुजारी राकेश अब सांप को लेकर अपने खास कमरे में आ गया। यहाँ आकर इसने सांप को अपने सामने चौकी पर बिठा दिया। ये एक खास सांप था जो आदमी की आवाज में पुजारी से बातें किया करता था। पुजारी ने पूछा, कालू को देखकर तुमने फुनकार क्यों मारी थी? सांप ने कहा, पुजारी देवता, कालू तुम्हारी ताकत का राज मालूम करने की नीयत से आया था। पुजारी राकेश के माथे पर बल पड़ गए। इसने पूछा, कालू मेरी ताकत का राज क्यों मालूम करना चाहता है? सांप ने कहा, कालू माता नागनी का खास आदमी है। वो तुम्हारी ताकत का राज मालूम करके तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी जगह पर माता नागनी को लाना चाहता है। पुजारी राकेश की आंखों से मारे गुस्से की चिंगारियां निकलने लगी। इसने सांप को अपनी गर्दन में लपेट लिया। जब शाम हो गई और मंदिरों में हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा तो पुजारी राकेश मंदिर की एक कोठरी में गया। वहाँ एक पटारी में से एक स्याह रंग का सांप निकाला। ये सांप बड़ा जहरीला था। इसने सांप से कहा, कालू के पीछे जाओ, वो जहाँ कहीं भी है इसको हलाक करके वापस आ जाओ। काला सांप कोठरी से बाहर निकल गया। माता नागनी को पुजारी इसलिए कत्ल नहीं करवाना चाहता था कि एक तो माता नागनी के पास कोई भी सांप जाता उसको फौरन मालूम हो जाता था और इसके अपने दोनों सांप इसे हलाक कर सकते थे। पुजारी राकेश ने किसी और तरीके से माता नागनी को हलाक करने का फैसला कर लिया था। काला सांप मंदिर से निकलकर अंधेरे में दरख्तों झाड़ियों में से होता हुआ कालू के घर की तरफ जा रहा था। इसे कालू की बाकायदा बू आ रही थी। कालू घर में बैठा खाना खा रहा था। काला सांप बड़ी खामोशी से अंदर आ गया। कालू चारपाई पर बैठा था। सांप चारपाई पर पीछे से चढ़ गया और इससे पहले कि कालू होशियार होकर भाग जाता, काले सांप ने उछलकर कालू की गर्दन पर डस दिया। ये सांप इस कदर जहरीला था कि कालू फौरन चकराकर चारपाई पर गिर पड़ा और इसका जिस्म फटना शुरू हो गया। काला सांप वापस पुजारी के पास पहुंच गया। दूसरे दिन माता नागनी को पता चला कि कालू को सांप ने डस दिया है और वो मर गया है।
वो समझ गई ये काम पुजारी राकेश का है। वो सीधी सराय में नस्तूर और उमरू के पास पहुंची और कहा, पुजारी ने कालू को सांप से डसवाकर मार दिया है। उमरू अय्यार बोला, इसका मतलब है अब हमें खुद कुछ करना होगा। नस्तूर ने कहा, मैं अभी जाकर पुजारी राकेश की गर्दन तोड़ आता हूँ। माता नागनी ने कहा, इस तरह तुम अपने दोस्त जकूटा का सुराग नहीं लगा सकोगे। ठीक है, तुम पुजारी राकेश को हलाक कर डालो, मगर जकूटा का तुम्हें सुराग नहीं मिल सकेगा। हम लोगों को बड़ी चालाकी से काम लेना होगा। कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कामिनी नागिन कहने लगी, तुम हमें क्या मशवरा देती हो? माता नागनी थोड़ी देर कुछ सोचती रही और फिर कहने लगी, पुजारी के पास एक सांप है जिसको वो हर वक्त अपनी गर्दन में लटकाए रखता है। ये सांप इसे सब कुछ बता देता है। अगर किसी तरह पुजारी के इस सांप को हलाक कर दिया जाए तो कम से कम पुजारी को ये मालूम नहीं हो सकेगा कि हम इसके खिलाफ कोई स्कीम तैयार कर रहे हैं। उमरू अय्यार कहने लगा, ये काम मैं कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। रात को उमरू अय्यार गायब होकर सीधा पुजारी राकेश के मंदिर में पहुंच गया। इस वक्त वो महानाग की पूजा कर रहा था। सांप इसकी गर्दन में ही था। उमरू अय्यार गायब होकर वहाँ पहुंचा तो सांप ने जोर से फुनकार मारी और धीमी आवाज में पुजारी से कहा, यहाँ कोई गैबी आदमी मौजूद है। पुजारी राकेश एकदम होशियार हो गया। इसने चारों तरफ देखा मगर इसे कोई नजर ना आया। वो गैबी आदमी को देख भी नहीं सकता था। वो वहाँ से दूसरे कमरे में चला जाना चाहता था। वो उठकर जाने लगा तो उमरू ने आगे बढ़कर इसकी गर्दन में लिपटा हुआ सांप पकड़ा और अपनी जंबील में डाल लिया। जंबील में जाते ही सांप का कुछ पता ना चला कि वो कहाँ चला गया है। पुजारी राकेश ने जब देखा कि गैबी आदमी ने इसके सांप को गायब कर दिया है तो वो दौड़ा, सीधा अपनी खास कोठरी में आया और दरवाजा बंद करके अंदर से चिटकनी लगा दी। पुजारी घबराया हुआ था क्योंकि साफ जाहिर था गैबी दुश्मन इसके सर पर पहुंच चुका है। इसने फौरन पटारी में से काले सांप को निकाला और कहा, यहाँ कोई ऐसा इंसान आ गया है जो नजर नहीं आता। तुम फौरन इसकी मुंह पर इसके पास जाकर इसके पाँव पर डस दो और इसे भी हलाक कर दो। काला सांप पटारी से निकलकर इधर उधर देखने लगा। इसे उमरू अय्यार की बू आ रही थी। ये बू मंदिर के बड़े दरवाजे से आ रही थी, जहाँ इसने एक गैबी आदमी को देखा जो बगल में थैला लटकाए बड़े इत्मीनान से खड़ा था। काले सांप ने पीछे से जाकर उमरू के पाँव पर डस लिया। उमरू अय्यार ने झुककर देखा तो इसे एक काला सांप एक तरफ जाता नजर आया। उमरू अय्यार ने लपक कर इसे पकड़ा और अपनी जंबील में डाल लिया। ये सांप भी जंबील के अंदर जाकर कहीं का कहीं पहुंच गया। पुजारी राकेश को जब मालूम हुआ कि इसका दूसरा काला सांप भी गायब हो गया है तो वो घबराया कि गैबी दुश्मन बड़ा ताकतवर है। इसने बड़े गौर से ज़ेबिनोव का नारा लगाया और इसे अपनी ताकत की वजह से उमरू अय्यार नजर आ गया। ज़ेबिनोव का नारा सुनकर उमरू चौंक गया। इसने पुजारी राकेश को गर्दन से पकड़ लिया। बताओ, जिसका तुमने नारा लगाया है वो कहाँ है? अब पुजारी राकेश समझ गया ये दुश्मन अपने दोस्त जकूटा की तलाश में वहाँ आया है। पुजारी किसी हालत में भी उमरू अय्यार को जकूटा के बारे में नहीं बता सकता था कि वो झील के अंदर बेहोश पड़ा है और इसने इसे पत्थर का बना दिया है। पुजारी राकेश ने अय्यारी से काम लेते हुए कहा, जकूटा मेरे पास जरूर आया था और इसने अपनी मर्जी से मुझे थोड़ी सी ताकत दे दी थी क्योंकि मैंने इसकी बड़ी खिदमत की थी। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ चला गया है। उमरू अय्यार ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। पुजारी ने जल्दी से कहा, अच्छा मुझे छोड़ दो, मैं अभी मंदिर के बड़े सांप से पूछ कर आता हूँ कि जकूटा कहाँ है। ये सांप मुझे सब कुछ बता देता है। उमरू अय्यार ने पुजारी को छोड़ दिया और कहा, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम फौरन पूछ कर आओ। पुजारी राकेश मंदिर के बड़े दालान की तरफ तेज तेज कदमों से चल कर गया और सांप के एक बहुत बड़े बुत के पीछे जो जीना बना हुआ था वहाँ उतर गया। पुजारी इतना अहमक नहीं था कि उमरू अय्यार को जकूटा के बारे में बताकर अपनी ताकत खत्म करवा लेता। जकूटा के वापस मिलते ही पुजारी की ताकत खत्म हो जाती थी और वो ये ताकत अपने पास ही रखना चाहता था। इसे मालूम था कि इसके जाने के बाद उमरू अय्यार कभी मालूम नहीं कर सकेगा कि जकूटा पत्थर का बुत बनकर झील के अंदर डूबा हुआ है। पुजारी राकेश मंदिर के गार में से गुजरता हुआ दूर पहाड़ियों में जा निकला। यहाँ से वो गायब हो गया। वो कुछ अरसा महानाग के मंदिर और अपने गैबी दुश्मन से दूर रहना चाहता था। इस तरह इसकी ताकत इसके पास ही रहेगी और वह जब चाहे वापस आकर महानाग मंदिर की सबसे बड़ी गद्दी पर कब्जा जमा सकता है। उमरू अय्यार ने कुछ देर पुजारी का इंतजार किया। जब वो ना आया तो इसकी तलाश में निकला। इसने सारे मंदिर देख डाले, पुजारी इसे कहीं ना मिला। वो वापस नस्तूर और कामिनी नागिन के पास आ गया और सारी बात बयान कर दी। नस्तूर कहने लगा, उमरू भाई, तुम्हें पुजारी को जाने नहीं देना चाहिए था। वो भाग गया है। वो जानता है जकूटा की ताकत इसके पास ही रहेगी और हम जकूटा को कभी नहीं ढूंढ सकेंगे। कामिनी नागिन कहने लगी, माता नागनी के पास चलकर मालूम करते हैं कि पुजारी कहाँ गया होगा। ये तीनों माता नागनी के पास इसकी गार में पहुंच गए। जब माता नागनी को पता चला कि पुजारी राकेश भाग गया है तो इसने अफसोस के साथ कहा, उमरू भाई, पुजारी तुम्हें धोखा दे गया। अब हमें ये भी मालूम नहीं हो सकेगा कि जकूटा कहाँ है और पुजारी की ताकत भी इसके पास ही रहेगी। मैं अगर महानाग मंदिर की सबसे बड़ी गद्दी पर कब्जा करके बैठ भी गई तो इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पुजारी राकेश जब भी आएगा वो मुझे अपनी ताकत के जरिए गद्दी से उतार देगा और मुमकिन है कि वो मुझे कत्ल भी कर डाले। नस्तूर, कामई और उमरू अय्यार चुप होकर सोचने लगे। नस्तूर ने कहा, माता नागनी, तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए?
माता नागनी ने जवाब दिया, हमें कुछ मालूम नहीं कि पुजारी ने जकूटा को कहाँ रखा हुआ है। हो सकता है इसने कहीं दूर पहाड़ियों में किसी गार में बंद कर रखा हो। नस्तूर बोला, एक बात साफ जाहिर है कि पुजारी ने जकूटा को अपने तिलिस्म के जरिए बेहोश रखा होगा, क्योंकि अगर जकूटा होश में होता तो वो राकेश पुजारी को जिंदा ना छोड़ता और पुजारी इसकी ताकत भी हासिल नहीं कर सकता था। उमरू कहने लगा, ये पुजारी कोई बड़ा खतरनाक जादूगर भी है, क्योंकि जकूटा से इसकी ताकत को छीन लेना कोई मामूली जादूगर का काम नहीं है। कामई नागिन ने कहा, मेरा ख्याल है हमें यहीं बैठकर पुजारी राकेश का इंतजार करना चाहिए। कभी न कभी तो जरूर वापस आएगा। आखिर ये इसका सबसे बड़ा मंदिर है और वो इस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी है। माता नागनी बोली, पुजारी बड़ा मक्कार है। जब तक इसे मालूम होता रहेगा कि तुम लोग यहाँ पर मौजूद हो, वो नहीं आएगा। इससे बेहतर तो ये है तुम लोग इसको तलाश करो और इसे पकड़कर जकूटा का पता मालूम करो। आखिर तुम लोग भी कोई मामूली आदमी नहीं हो, तुम्हारे पास भी बड़ी ताकत है। नस्तूर ने कहा, माता नागनी ठीक कहती है, हमें आज ही पुजारी राकेश की तलाश में पहाड़ियों में निकल जाना चाहिए। माता नागनी ने कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है पुजारी कंचनजंगा की पहाड़ी की तरफ गया होगा। वहाँ महागुरु अजदहे का गार है। पुजारी इससे कुछ और ताकत हासिल करने की कोशिश करेगा, फिर वो नई ताकत लेकर आएगा और हो सकता है वो अपनी नई ताकत से आपको भी सख्त नुकसान पहुँचाए और आपको भी जकूटा की तरह किसी जगह गायब कर दे। नस्तूर ने कहा, हम जकूटा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। हम पुजारी राकेश की तलाश करेंगे और इससे अपने साथी को बरामद करेंगे और पुजारी को इसके जुर्म की ऐसी सजा देंगे कि वो याद रखेगा। उमरू इसी जगह सराय में रहेगा। मैं और कामई पुजारी राकेश की तलाश में जाते हैं। कामई नागिन कहने लगी, मैं तैयार हूँ। चुनाचे इसी रात को जब आधी रात गुजर चुकी थी, नस्तूर और कामई नागिन कंचनजंगा की पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। उमरू यार पीछे सराय में ही रहा। कामई नागिन और नस्तूर हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। वो गायब नहीं थे और हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर से होकर चले जा रहे थे। यहाँ पहाड़ों की चोटी पर बर्फ जमी हुई थी। ये बड़ा लंबा पहाड़ी सिलसिला था। कंचनजंगा की पहाड़ी इसके सिलसिले की एक पहाड़ी थी। माता नागनी ने इस पहाड़ी की पहचान बताते हुए नस्तूर को कहा था कि इस पहाड़ी की 3 बर्फपोश चोटियां हैं जो एक दूसरे के साथ साथ हैं। इनमें से एक पहाड़ी की चोटी सबसे बुलंद है, यही कंचनजंगा की पहाड़ी है। नस्तूर और कामई नागिन को कोई जल्दी नहीं थी, इस वजह से इनकी रफ्तार भी कम थी। सुबह हो रही थी और इन्हें दूर से एक पहाड़ी नजर आई जिसकी 3 चोटियां थी। दरमियान वाली चोटी सबसे ऊंची थी। नस्तूर ने कहा, कामई बहन, यही कंचनजंगा की पहाड़ी है। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए ऐनक वाला जिन स्टोरीज चैनल पर।